أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من على قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. وہ پروردگار عالم جس کے کان بھی نہیں ہے مگر سنتا ہے دعائیں، ہیں آنکھیں بھی نہیں مگر دنیا کے کونے کونے پر نظر ہے. وہ پروردگار عالم جو فقط کن کہتا ہے فیکون خود ہو جاتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. کیا جب مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تھی تو مولا نے اپنے قریبی ترین اصحاب سے فرمایا تھا، قریبی ترین اصحاب سے فرمایا تھا جو کچھ نہ پوچھو. ان میں سے ایک نام ہے ساسا ابن سوحان. بھائی ہیں ساسا ابن سوحان اور زید ابن سوحان. اب آپ جب جائیں گے نا کوفہ زیارت کرنے کے لیے انشاءاللہ تو وہاں پر سب سے پہلے مسجد کوفہ ہے، پھر مسجد سالہ ہے، پھر اسی کے سامنے مسجد ہے ساسا ابن سوحان اور زید ابن سوحان. تو شعلہ میں خطیب تھے، مولا کے بھائی تھے، عاشق امیر المومنین تھے. اب جب بھی مولا خطبہ دینا چاہتے تھے نا تو مولا ساسا سے کہتے تھے ساسا ذرا لوگوں کو تیار کرو، علی آنے والے ہیں. واہ واہ. تو وہ شعلہ میں خطیب سے وہ مجمع سے کہتے مجمع مولائے کائنات اس انداز سے ذہن تیار کرتے تھے لوگوں کو قدر ہو علی آ رہے ہیں. واہ واہ. لوگوں کو قدر ہو علی آ رہے ہیں. اب مولا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ادھر آگے ساسا نے کہا مولا میرا سوال پرانی ہے اور ساسا آپ کو اجازت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. کہا یا امیر المومنین من افضل انت ام آدم. تو مولا نے فرمایا یا اے ساسا تزکیۃ المرء نفسہ کبھی مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کبھی شمار ہوتا ہے، گناہ شمار ہوتا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے اپنے حبیب سے اے میرے حبیب اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجیے. اس لیے میں اپنے فضائل پیش نہیں کر رہا. مولا فرمایا اس لیے فضائل پیش نہیں کر رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں. یہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، اس نے مجھے یہ مقام دیا. اسی لیے بتا رہا ہوں میں آدم سے افضل ہوں. نعرہ حیدری. میں آدم سے افضل ہوں. وَلِمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ایسا کیوں کر لیں کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ اللہ نے آدم سے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا. آپ اے آدم آپ اور آپ کے پودے کے قریب نہ جائیے گا. اللہ نے جس پودے سے قریب جانے کا منع کیا تھا وہ تھی گندم. بھائی گندم حرام نہیں تھی، حرام کرتے تو عصمت چلی جاتی.
आहा, तवज्जो वाह वाह। हराम करते तो इसमें चली जाती। अब मौला से पूछा क्यों? कहा इस वजह से क्योंकि आदम ने गंदम खाई थी, इस वजह से आदम ने गंदम खाई थी। वो जिस अल्लाह ने इस पौधे से करीब जाने को मना किया था, वो तो गंदम हराम नहीं थी, हराम करते तो इसमें चली जाती। आदम ने अल्लाह ने मना किया फिर भी रुक नहीं पाए। का ऐसा था अल्लाह ने मुझे रोका नहीं था, आहा, भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी जौ पे गुजार दी। वाह वाह। इसलिए बता रहा हूँ मैं आदम से अफजल हूँ, मैं आदम से अफजल हूँ। अब सवाल किया या अमीरुल मोमिनीन मन अफजल अंसा कौन अफजल है, आप या तू? कहा अना अफजल, मैं नूह से अफजल हूँ। कहा भले माँ ज़ाले का या अमीरुल मोमिनीन ऐसा शुक्र है कि आप नूह से अफजल हैं। का सासा अल्लाह ने नूह से कहा तबलीग करे, वो 950 साल तबलीग करते रहे, लेकिन आखिर में बद्दुआ कर दी, आखिर में बद्दुआ कर दी। और फिर मौला ने फरमाया ऐसा था अल्लाह ने, मैंने जितना बुरा वक्त पैगंबर के बाद देखा है किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। 25 साल मैं तबलीग करता रहा, लेकिन मैंने एक बार भी बद्दुआ नहीं की। इसीलिए योली। बता रहा हूँ मैं अफजल हूँ, मैं से अफजल हूँ। फिर क्या या अमीरुल मोमिनीन मन अफजल अंसा अम इब्राहीम का अना अफजल, मैं इब्राहीम से अफजल हूँ। का भले माँ ज़ाली का या अमीरुल मोमिनीन, कहा ऐसा क्यों कर है, क्या आप नूह से अफजल इब्राहीम से अफजल हैं? का ऐसा था इब्राहीम ने अल्लाह से कहा था ए अल्लाह मुझे दिखा दे तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है, मुर्दे कैसे जिंदा करता है। आवाज़ें गुजर आई थी ए इब्राहीम क्या आप ईमान नहीं रखते? का भला बेशक मैं ईमान रखता हूँ, लेकिन इन्ना कल्बी इत्मीनाने कल्ब की खातिर देखना चाहता हूँ मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। का ऐसा सा अल्लाह ने इब्राहीम ने अल्लाह से कहा मुझे दिखा दे मुर्दे कैसे जिंदा करता है, लेकिन मैंने किसी मकाम पे कहा था लो कोशिफल होता लमज़हतो यकीना, अगर मुझ अली के सामने से भी सारे हिजाबात भी हटा दिए जाए तो मुझ अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। वाह वाह। योली। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो है मौला ने कहा बता, इसीलिए बता रहा हूँ मैं इब्राहीम से अफजल हूँ। फिर कहा या अमीरुल मोमिनीन अना अफजल अंसा अम मूसा, का अना अफजल मैं मूसा से अफजल हूँ। कमल बताने का या अमीरुल मोमिनीन ऐसा क्यों कर है, क्या आप मूसा से अफजल हैं? तवज्जो हो। कहा ऐसा अल्लाह ने मूसा से कहा ए मूसा फिरौन को तबलीग करो, वो पागल हो गया है, दुनियादार हो गया है, अपने आप को रब समझता है, जाओ जाकर तबलीग करो। तवज्जो हो। जनाब मूसा ने कहा ए अल्लाह मैंने फिरौन वालों का एक आदमी कत्ल किया है, एक आदमी कत्ल किया है, एक आदमी कत्ल किया है। वो वाजिबुल कत्ल था, जुल्म कर रहा था, रोका नहीं, रुका मार दिया। वो वाजिबुल कत्ल था, कहीं वो आदमी के बदले मुझे न मारते। आहा, मेरे भाई हारून को भी उस में ही मेरी
वाह ऐसा था, लेकिन जब अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर मक्के सूरे बरात का ऐलान करो, आहा। ना मैंने अल्लाह से कहा ना रसूलुल्लाह से वाह कहा वाह मेरे साथ किसी को भेजो। आहा नारा हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलवार ना मैंने अल्लाह से कहा ना रसूलुल्लाह से कहा मेरे साथ किसी को भेजो। अब हैबते मूसा मशहूर है, हैबते मूसा एक आदमी मारा था का ऐसा था जनाबे मूसा ने एक आदमी मारा था, लेकिन मक्के का उस वक्त कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ मैंने किसी को मारा ना हो। मैंने किसी के घर से किसी के बाप को मारा, किसी के बाबू को मारा, किसी के नाना को मारा। तवज्जो हो, मैंने पूरे मक्के शहर से किसी न किसी को मारा है, लेकिन मैं मक्के जा रहा था तो मैं एहराम में गया था, तो एहराम में ज़रा नहीं बांध सकते, आहा एहराम में असलहा नहीं पहन सकते, असलहा नहीं बांध सकते, यानी मौला निहत्ते मक्के जा रहे थे। आहा भाई मक्के वालों के पास असलहा था, मौला अकेले थे, मौला निहत्ते थे, मक्का शहर था, सारा शहर अली का दुश्मन वाह वाह और मौला निहत्ते मक्के जा रहे हैं। अब मौला काबे पे तरफ आए, अब मक्के में चारों तरफ पहाड़ है, मौला पहाड़ पे चढ़े और जब उतरने लगे ना तो मक्का जमा होने लगा। एक आदमी ने दूसरे से कहा अरे ये वही अली है जिसने तुम्हारे बाप को मारा, अरे ये वही अली है, अरे ये वही अली है। पूरे मक्का जमा हो गया, पूरे मक्के में अली अली हो रहा था। योल पूरे मक्के में अली अली हो रहा था। मौला पहाड़ से उतरे और अब मौला काबे की तरफ बढ़े। अब मुझे नहीं पता काबे में ज्यादा कशिश थी या अली में, वाह वाह या अली में ज्यादा कशिश थी। मौला काबे की छत पर चढ़े, मौला ने सूरह तौबा का ऐलान किया, कहा तुम में से जो काफिर है वो नापाक है, खाली करो मक्का, ये अल्लाह का घर है, खाली करो मक्का। मौला काबे की छत से उतरे, अब जैसे ही जाने लगे तो मौला ने लोगों के चेहरों को देखा तो उन पे खौफ था, अपने दिल में झांक के देखा तो इत्मीनान था। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूं, सुनेंगे मेरा अंदाज? मौला कैसे चले होंगे? जैसे शेर कछार से शिकार को लेके चलता है, किसी बकरी की हिम्मत नहीं आके रास्ता रोके। वाह वाह योल किसी बकरी की हिम्मत नहीं आके रास्ता रोके। बस रास्ता इसलिए बता रहा हूँ मैं मूसा से अफजल हूँ। या अमीरुल मोमिनीन अना अफजल, मन अफजल अल्लाह ईसा का अता अफजल, मैं ईसा से अफजल हूँ का भले मान साले का या अमीरुल मोमिनीन। ऐसा क्यों करे क्या ईसा से अफजल का? ऐसा था जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो ईसा की माँ जनाबे मरियम बिन्ते इमरान बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं थी, अंदर थी। आहा आवाज़ें गुजरत आई, या मरियम हाज़ा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा। ओ होगे आहा यहाँ से या है मरियम, ये इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। वाह वाह यहाँ से बाहर तशरीफ ले जाइए। कल लेकिन सासा जब मेरा वक्त विलादत करीब आया, तवज्जो, मेरा वक्त विलादत करीब आया तो मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर नहीं थी, बाहर थी। दीवारे काबा शक हुई, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली, फातिमा काबे के अंदर आ जाइए।
عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بلایا گیا اور میری ماں کو میری وجہ سے کعبے میں بلایا گیا۔ بول بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ یا فاطمہ کو دخلی کھانے کے اندر تشریف لے جائیے۔ اب صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ اسی لیے بتا رہا ہوں میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اب آخری ایام ہے تو میں نے سوچا تھوڑے سے فضائل بی بی زینب کے بھی ہو جائیں۔ سنیں گے اب یہ بی بی زینب سب نے سن رکھا ہے بی بی زینب کے خطبے کا۔ اب وہاں پر جب خطبہ بی بی خطبہ دینا نہیں چاہتی تھی، محمد والے محمد بی بی خطبہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ بی بی نے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ جب وقت کے امام پہ پابندی ہو تو مستورات کو اجازت ہے کہ وہ بولے۔ بی بی زینب ہے سید صدیقہ زہرا، بی بی سیدہ ہے صدیقہ کبریٰ، جناب امیر ہے صدیقہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی اور کہے نا کوئی اور ہے صدیق اکبر، کوئی اور ہے صدیقہ کبریٰ تو ان سے کہیے گا کہ مباہلہ میں پیغمبر انہیں کیوں نہیں لے گئے؟ اگر کوئی اور ہوتے بھائی جو مباہلہ میں لی گئی وہی صدیقہ کبریٰ، جو مباہلہ میں گئے وہی صدیقہ اکبر۔ اب جناب امیر ہے صدیقہ اکبر، اب بی بی زینب کا خطبہ ہے یزید کے دربار میں۔ بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ بی بی خطبہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ بی بی نے دفاع مولا سجاد کے دفاع کے لیے خطبہ دیا کیونکہ بی بی اپنی ماں کا کردار جانتی تھی کہ جب مولا علی پہ پابندی تھی تو بی بی زہرا نے قیام کیا تھا، پہلے علی پہ بی بی زہرا نے قیام کیا، بی بی زہرا نے دفاع کیا پہلے علی کا، اور یہاں جناب صدیقہ زہرا نے چوتھے امام دوسرے علی واہ 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 کی ولایت و امامت کا دفاع کیا۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا یزید کے دربار میں تو وہاں پر جب پہنچا ہے تو اول سفر تھی، جمعے کا دن تھا، تو اب ایک آدمی ممبر پہ مولا علی کی توہین کر رہا تھا نام لے کے۔ مولا سجاد نے کہا اس نے تو جو بولنا تھا بول دیا، اب مجھے اجازت دو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ہمارے قیدی ہیں۔ تو وہاں یزید نے جلاد کو اشارہ کیا کہ انہیں خطبہ نہ دینے دینا، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے مولا سجاد کو بٹھا دیا۔ اب جیسے ہی بٹھایا بی بی زینب کھڑی ہو گئی، بی بی زینب نے کہا انہیں بھی خطبہ نہ دینے دینا۔ انہوں نے کہا یزید نے کہا انہیں بھی خطبہ نہ دینے دینا۔ بی بی نے سر اٹھا کر کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو جب نہ تلاقہ کے بیٹے بھول گیا کن کا بیٹا ہے؟ فتح مکہ کے دن جنہیں میرے نانا نے آزاد کیا تھا، واہ واہ بھول گیا کن کا بیٹا ہے؟ تو روک کے دکھا، تو ان کی نسل سے ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، تو روک کر دکھا، ہوتا کون ہے روکنے والا؟ میں خطبہ دوں گی۔ تو اس نے کہا یزید نے کہا نہیں اللہ سے کہو اور تاجیانہ لے کر آگے بڑھے۔ تو جہاں پر بیویاں کھڑی تھی نا 700 کرسی نشین تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سب کھڑے ہو گئے، کہا اے یزید
हैं, देने से खुतबा तेरा क्या बिगाड़ लेंगी, तेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अभी पहचानते नहीं थे कौन है। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते अली की बेटी है। मानता था फिर भी मुनकिर था। मानता था फिर भी मुनकिर था। अब बीबी को किसी तरीके से इजाजत मिल गई। बीबी ने खुतबा दिया कि मैं रसूल खुदा की नवासी हूँ, मैं हुसैन इब्न अली की बहन हूँ, मैं अली के मुर्तजा की बेटी हूँ। मेरे दादा अबू तालिब ने रसूल खुदा की परवरिश की है। मेरी दादी काबे में जा चुकी हैं, मेरी दादी काबे में जा चुकी है। मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अब जैसे ही बीबी ने खुतबा दिया, ओ यजीद तूने जितनी बगावतें करनी थी तूने कर ली, अगर तुझ में हिम्मत है तो और बगावत करके दिखा, और बगावत करके दिखा। और हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं आप सबसे मुखातिब होकर कहता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो जिक्र आले मोहम्मद है। जिक्र आले मोहम्मद कभी नहीं मिटने वाला, क्योंकि जब शराबी के दरबार में नहीं रुका तो आज क्या रुकेगा? आज कौन रुकेगा? आज कैसे रुकेगा? और जो जिक्र हुसैन को रोकने की कोशिश करेंगे तो जिक्र हुसैन के मुकाबले में ना हवा में फट फट के बिखर जाते हैं। अब बीबी ज़ैनब ने कहा हम आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है। फिर सारे जो कुर्सी नशीन थे, जो यजीद के दरबारी थे, सब सोचने लगे अरे मिट तो गया इनका जिक्र, सारे भाइयों को कत्ल कर दिया यजीद ने, करबला में शहीद कर दिया, और कैसे इनका जिक्र मिटेगा, और कैसे इनका जिक्र मिटेगा? बीबी ने कहा तुम नहीं समझ सकते, मैं आगे की बात बता रही हूँ। यही दमिश्क शहर होगा, यही शाम होगा, न यजीद का सिक्का होगा, न यजीद की हुकूमत होगी, न यजीद का तख्त होगा, न यजीद का ताज होगा। यही शहर होगा, यही शाम होगा, हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अब बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और सारे जब ईमान लाने लगे ना बीबी ज़ैनब पे, बीबी ज़ैनब पर ईमान लाने लगे, तो बीबी ने कहा मानते हो ना मैं बाज़मत हूँ? कहा तो फिर यजीद ने कहा मैंने नहीं मारा हुसैन को, शिमर ने मारा है, उमर इब्न साद ने मारा है, मैंने नहीं मारा ये हुसैन को। भाई जब कातिल खुद अपने जुर्म से दामन छुड़ाने लगे, समझ जाना इकबाल जुर्म कर रहा है। बीबी ज़ैनब ने सैयद शहदा के सर को लेकर कहा भैया गवाह है ना, मैंने आपके कातिल से उसी की दरबार में इकबाल जुर्म करवा लिया। मैंने इकबाल जुर्म करवा लिया। बीबी ज़ैनब अब सब मानने लगे, हम मानते हैं कि आप बाज़मत है, हम मानते हैं कि आप बाज़मत है, ये बीबी बाज़मत है। तब बीबी ने पूरे दरबारियों से देखकर कहा मानते हो ना मैं बाज़मत हूँ? कहा। फिर बीबी ने मौला सज्जाद की तरफ इशारा करके कहा वक़ुम या सैयदी या मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, अब आप खुतबा दीजिए। का मानते हो ना मैं बाज़मत हूँ, ये मेरे भी मौला हैं।
हाँ अब मौला सज्जाद खड़े हुए, जब खुतबा देने लगे थे ना तो लोग कहने लगे आप भी मिंबर पर आ जाइए। तो मौला सज्जाद ने कहा इस लकड़ियों के ढांचे पर नहीं पहुंचा सका। अभी जिस मिंबर से थोड़ी देर पहले अली इब्न अबी तालिब की तौहीन की गई हो, वो मिंबर नहीं है, वो लकड़ियों का ढांचा है। और जिस मिंबर से अली के फजाइल बयान हो वही असली मिंबर है। कहा नहीं, तो लोगों ने कहा नहीं आप आ जाइए मिंबर पे। मिंबर पर आए, कहा मैं उस आयत का बेटा हूँ जिसमें लिखा है रसूल खुदा मेराज पे गए थे, उस मकाम पे सारे फरिश्ते पीछे रह गए, रसूल खुदा आगे बढ़ गए थे। फिर कहा मैं उसका बेटा हूँ, मैं अली के मुर्तजा का बेटा हूँ, मैं अली के मुर्तजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ। ज़मज़म हमारा है, हजरे अस्वद हमारा है, मक्का हमारा है, मदीना हमारा है। अब सबकी तवज्जो हो। अब मौला ने खुतबा देने लगे। अब यजीद ने कहा और कोई तरीका तो बचा नहीं है रोकने का। या मौज़िन से कहा मौज़िन आजाद थे, इन्हें रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आता। मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर। मौला ने जवाब में कहा अल्लाहु अकबर। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला ने जवाब में कहा वहदहु ला शरीका लह। फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहा ओ मौज़िन रुक जा। कहा ओ यजीद बता मोहम्मद, ये मोहम्मद तेरे जद है या मेरे? अब यजीद बिल्कुल खामोश हो गया। मौला सज्जाद ने कहा तेरी खामोशी बता रही है, तू जानता है हमारे जद है, और अगर तू कहेगा ना तुम्हारे जद है मेरे जद है तो तू झूठा है। और अगर तू मानता है कि मेरे जद है फिर तूने हमें फिर कैदी क्यों बनाया है? वाह वाह नाराए हैदरी योली हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया कि आखिरी अयाम है। आज दिल खोल के पुरसा देना सैयारा को उनकी बेटियों का, एक मासूम सी बच्ची का जिसको बड़ा अरमान था मैं घर जाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा हम भी घर को जाएंगे। लेकिन वो बच्ची, आपने देखा है कभी जिंदानों में भी कब्रें बन जाती है। बीबी सकीना घर नहीं जा सकती। बीबी अब आखिरी अयाम है। अलविदाई मसाइब पढ़ूंगा। अब जब ये काफिला करबला में था तो मौला सज्जाद ने 3 दिन तक बीबियों को जमा किया। जब रिहाई मिल गई और कहा, अब जब सारी बीबियां जमा हो गई ना, एक बीबी कहती वाह हुसैना, सारी बीबियां रोने लग जाती। फिर जब चुप होती ना दूसरी बीबी कहती वाह अली अकबर, सारी बीबियां रोने लग जाती। जब चुप होती ना तो तीसरी बीबी कहती वाह अब्बासा, सारी बीबियां रोने लगती। अब हुक्म इमाम से जब सारी बीबियां चुप होती, फिर मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सारी बीबियों से कहतिएगा हम कल मदीने जा रहे हैं। अब सुबह नमूदार हुई, फूफी अम्मा सब तैयार हैं का? आपकी अम्मा रबाब नजर नहीं आती। कहा फूफी अम्मा हम अम्मा को रास्ते से ले लेंगे। कहा बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान की तरफ जाता है। कहा बीबी अम्मा जिंदान में जाकर देख लीजिए। बीबी ज़ैनब ने क्या देखा? जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है, वैसे जनाबे रबाब कमर से लिपट के रो रही थी और कह रही
बेटी सकीना उठो, मदीने जा रहे हैं, हम मदीने जा रहे हैं। अब उसमें मौला ने फरमाया, अम्मा चलिए, अम्मा मेरे साथ चलिए, हम मदीने जा रहे हैं। अब हुक्म इमाम था, बीबी चली। अब जैसे ही तब जब ये काफिला जा रहा था ना मदीने की तरफ, लुटा हुआ कारवां मदीने की तरफ जब जा रहा था ना, तो कहा, फूफी अम्मा ये रास्ता मदीने की तरफ भी जाता है और करबला की तरफ भी जाता है। गोया हम मदीने चले, गोया या फिर थोड़ी देर के लिए करबला चले। फूफिया सारी बीबी करबला का नाम सुनना था, सारी बीबियां तरफ थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैंने लाशें तो बड़े देखे हैं, मैंने कब्रों के निशान नहीं देखे, मुझे कब्रें दिखा दे। अब करबला ये काफिला पहुंचा, फिर कहा, ये आप जब बताए ना इमाम हुसैन की कब्र है, सारी बीवियां उस पे गिर गई। अब जब उठी फिर पूछा, सज्जाद जी साथ वाली कब्र किसकी है? कहा, ये मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। सारी बीवियां गिर गई। काफिले और मोहम्मद की, कासिम की, सबकी कब्रें बता दी। एक बार बीबी ज़ैनब तड़प गई, कहा, सज्जाद तूने सबकी कब्रें बता दी, मेरे भाई अब्बास की कब्र को कहा, वो फूफी अम्मा वो फुरात के किनारे है। अब जैसे ही ये काफिला जा रहा था ना, बीबी ज़ैनब के साथ सारी बीवियां जा रही थी। बीबी ज़ैनब ने एक बार रास्ता रोका, कहा, ओ बीबियों सब बता देना, सब बता देना अब्बास को, चादरें चादरें चुनी, गुर्ज पड़े, शराबी के दरबार में लेकर जाया गया, लेकिन ये ना बताना सकीना जिंदान में रह गई है, अब्बास की गैरत बर्दाश्त नहीं कर, अब्बास की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जब ये काफिला दोबारा मदीने की तरफ जाने लगा ना, तो फूफी अम्मा से मौलवी सज्जाद ने पूछा, ए फूफी अम्मा सब तैयार हैं? का दोबारा आपकी अम्मा नवाब नजर नहीं आती। का मादरे किरामी, मौलवी सज्जाद ने कहा, मादरे किरामी चलिए हम वापसी मदीने जा रहे हैं। का सज्जाद मेरा मदीने में तो कुछ नहीं है, मेरी सकीना जिंदान में रह गई, मेरा असगर करबला में, मेरे वाली करबला में, मैं जाकर क्या करूंगी? हुक्म इमाम था, बीबी रबाब को जाना पड़ा। अब जब ये मदीने जाने लगा ना, मदीने जा रहा था, तो अब मौला अली के सबसे बड़े बेटे हैं मोहम्मद हनफिया। अब जैसे ही आए ना, उन्होंने ऐलान सुना था कि हुसैन का काफिला आ गया है। पूरा ऐलान नहीं सुना था, हुसैन का काफिला लुट के वापस आ गया है, हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब फौरन दौड़े दौड़े गए, अब देखा सामने से कोई भूला शख्स आ रहा है। कहा, मौला सज्जाद ने कहा, चाचा 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 मेरे बाबा हुसैन को शहीद कर दिया गया। कहा, अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? कहा, पहले अब्बास को शहीद कर दिया गया, चाचा अब्बास को शहीद किया, फिर मेरे भाई फिर मेरे बाबा हुसैन को शहीद किया। मौला फिर कहा, मुझे बस ये बता दे, मेरे भाई के साथ उनकी बहनें भी गई थी। कहा, चाचा जान उन्हें शराबी के दरबार में ले गए। जैसे ही जनाबे मोहम्मद हनफिया ने सुना, घोड़े से खुद को गिरा दिया। कहा, चाचा जान आपने सिर्फ सुना, अपने आप को गिरा लिया, मैं देख के आ रहा हूँ। अब सर कहा, ए जवान शख्स आप कौन है? बार बार मुझे चचा चचा क्यों कहते हैं? कहा, चचा जान पहचाना नहीं, मैं सज्जाद हूँ। कहा, सज्जाद जब आप यहाँ से गए थे तो 24 बरस के जवान थे, ये दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? कहा, जो मैंने देखा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब बीबी ज़ैनब मैंने तमाम जुमन साहिब तमाम किए। अब मदीने बीबी ज़ैनब ने मौला
हुसैन का खून और अकीदा लेकर बीबी सैयदा की कब्र पे और कब्र पे रख दिया। कब्र में एक लर्जा सा तारी हुआ, कब्र से आवाज आई, ज़ैनब कुर्ते